everyone, welcome to another episode of Confused. I hope you all are doing well and staying at home and are healthy enough to listen to our podcast. So how are you guys? मैं Very बढ़िया nice. क्रेजी सबका लॉकडाउन क्रेजी चल रहा है. बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही हाँ मार्च 23 से अब तक वैसे ही चल रहा है, चले जा रहे हैं, Hmm. खत्म ही नहीं हो रहा। So for all the viewers, I know it must have been a tough week. Monday to Friday काम करना, या जो बच्चों की कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना. So chill down, put up your headphones and listen to this episode. We have got a lot for you. हम लोगों ने इस वाले एपिसोड में we are going to talk about education and education in general. जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि how Delhi University is mocking students in like through the process and whatever is. So for this episode, so हमारा ये education के ऊपर we are doing a two part series. The next episode that we are going to present is also going to be on education, and we have a guest on that episode, yes. and that's a surprise for you guys. But for today, one of the four of us is currently studying under Delhi University. And she's gonna tell us about कि actual में what's the reality that is happening in Delhi University examinations, or actual में what is the fuss about and क्या problems है, and if there is any plausible solution we will think about it. So for all the viewers who are studying in Delhi University or जिनको online फड़ा लग रहा है, I hope this episode helps you. Okay. मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या सच में ड्यू वैसा विलेन है जैसे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है? मेरे को इतना ही बता दो अभी तो। टीकू हाँ, बेसिकली विलन तो बोल सकते हैं because it is like it has taken the lives of student very lightly and it is doing that abhi bhi. For example, not going to the examination का result वाला process or all the facade that it has done over there, जिसमें they mixed up the results of the student, they miscalculated the results or whatever, mark them absent or बहुत सारे लोगों को fail कर दिया था, वहाँ पे भी that is where it is the villain. But right now, talking about the examinations and open book examinations, a lot of people might call it a villain in their lives. But somewhere or the other, I feel that DU is also correct when it says that it is going to conduct examination, because see, offline exam conduct karana is not feasible right now. So it has come up with a new solution, which is open book examination. And I think it is necessary for all the students to give examinations, because any degree without giving particular examination or passing or without studying is not gonna help you, trust me. Because a lot of us, like I think one of us, Anudit, he is passed out, he will tell you that how is the life after the college and how difficult it is if you have not studied and if you don't have knowledge. Am I right? Yes, so like Shalika, before like going into all the facade about DU, just like give a brief, okay, so which college are you from and like which course are you pursuing, and like you are currently in third year. Yeah, so I am in College of Vocational Studies, University of Delhi, third year economics honors. I was to graduate this year in July. हो जाना चाहिए था मुझे graduate, but There. yeah, I am not Close अभी enough. तक exams Close भी हुए हैं. And that is the thing, when you think about it, it's like कि DU में economics honors में personally all the toppers, like सबसे ज़्यादा cut off होता है economics honors का, and you are playing with the lives of those students. उनको तुमने ऐसे अटका के रखा हुआ है जिनको पता भी नहीं है कि and the सबसे important thing is कि without our degrees, without our mark sheets, we cannot take admission elsewhere also. So it's like कि we are hung here and हम कहीं admission ले सकते हैं, हमारा एक साल बर्बाद हो रहा है. तो you understand that किस तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं अभी. Okay, so मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सबसे पहला एक पॉइंट रखते हैं कि जब आपने फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चों के पेपर नहीं ले रहे तो व्हाई फाइनल ईयर. तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि भाई शुड फाइनल ईयर
students give exams or not? Yeah, see, final year students should give exams because अच्छा now considering the situation, अगर पैंडेमिक नहीं होता तो नॉर्मल कंडीशन में भी तुम एग्जाम्स देते ना. एंड अगर पैंडेमिक है भी, ओके, एंड आई अंडरस्टैंड दैट lot of students cannot appear for online exams or cannot appear for examination per se because of their mental health or because of whatever pandemic. But I think appearing for examinations, that final examination that certifies कि हाँ तुमने ये पूरा कोर्स किया है and you are eligible to take admission elsewhere, that is really really important in my opinion. कि कुछ भी हो जाए एग्जाम तो they should give any kind of assessment. तुम I will not say examination, I will say any kind of assessment. It can be any plausible assessment. It can be not internal. I'm not saying कि internal assessment is nice क्योंकि इसमें तुम्हें पता है कि कैसे ही बच्चे पास होते हैं. I am talking about any kind of assessment in which we are given a chance to fare well, right? So So मैंने जैसे शालिका ने बोला, तो जैसे मेन डिस्कशन इसमें ये आता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बेसिकली दे से दैट फाइनल ईयर मार्क्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट in comparison to first and second year, right? So अगर मैं एक अपना personal opinion दूं, so I myself have graduated from Delhi University. So मैंने एक technical degree ली है Delhi University से. So I can pretty much assure you कि final year के marks क्यों important होते हैं, और मैं इसका एक बहुत अच्छा reason दूंगा जो बहुत लोगों के साथ relate करेगा, resonance करेगा. तो एक DU के बच्चे का एग्जांपल ले तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आर वेरी टफ इन कंपैरिजन टू द फाइनल ईयर. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मार्क्स एक्वायर करना इज अ वेरी बिग डील. ओके, तो फाइनल ईयर एक चांस होता है उन बच्चों के लिए जिनका फॉर वॉट एवर रीजन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में परफॉर्मेंस बहुत वीक रहा है. ओके, फाइनल ईयर में आपके पास सब्जेक्ट्स कम होते हैं, फाइनल ईयर में आपके पास सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस कम होता है. दे आर दो सब्जेक्ट्स की जिनका प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, तो यू वोंट हैव टू go into detail to score marks. Basically marks score करना easy होता है. तो जब when I was in college, मेरे सीनियर्स भी ये बोलते थे कि अगर आपके फर्स्ट 3 years में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो फोर्थ ईयर कैन बी अ रिडेम्पशन फॉर यू. In fourth year you score good marks, try to so that you can compensate your whole degree, total जो डिग्री के आपके जो मार्क्स आएंगे, so that you can get better marks in that. Okay, तो मेरे हिसाब से I know, मैं खुद डीयू से पास हूँ, डीयू इज फक्ड अप, उनका सिस्टम बहुत खराब है. बट जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, आई नो, हम इसमें अभी वो मान के नहीं चल रहे हैं. हम लोग उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो आर प्रॉपरली प्रिविलेज्ड टू अटेंड फाइनल ईयर एग्जाम्स, who have good net in their home, who have laptops, who have everything, who have study materials. तो हम लोग स्टडी मटेरियल्स और लैक ऑफ नेट और इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे. बट गिवन कि जिन लोगों के पास ही सब कुछ है, I personally, plead to you guys, please support in giving online exams for your final years. Cause final year के marks in general बहुत important होते हैं. They can actually boost up your CGPA for placements और masters. अगर आप masters की बात करते हो तो masters में आपके marks कहीं ना कहीं काफी important role play करते हैं. I know it's a good, आजकल के लिए बहुत कूल हो गया है कि हाँ बेड़ चाल में सब बोल रहे हैं कि पेपर नहीं देना, तो हम भी नहीं देंगे कि हमको भाई 2-3 महीने की छुट्टी मिल गई तो क्यों पेपर दें हम लोग. बट छुट्टी आपको अभी भी मिल रही है, पेपर आपके 1 हफ्ते में होंगे, वो भी ओपन बुक हो रहे हैं. यू गाइज आर हैविंग प्रिटी इजी. अगर पेंडेमिक नहीं होता तो आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलता, आपको वही प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी पेपर्स के लिए वो कर रहे हैं कि हमको पेपर्स नहीं देना है, आई ट्रस्ट यू. मैं आपको अपना वर्ड दे सकता हूँ. आई नो, मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि इसके वर्ड की क्या वैल्यू है, बट जस्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस साइड आई कैन से पर्सनल फाइनल ईयर मार्क्स कैन बूस्ट अप योर स्कोर. बिकॉज मेरे खुद के केस में हुआ है, मेरे फर्स्ट 3 years में मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे.
तो फोर्थ ईयर में जो मेरे मार्क्स आए हैं दैट एक्चुअली बूस्टेड अप माय सीजीपीए. DUK students are being very, greedy over here when you talk about, boosting up your marks and all of that. They are like कि हम एक एग्जाम तो देंगे भी नहीं, and ऊपर से they are asking, the university कि एवरेज भी नहीं, उनको उस सेमेस्टर का वो मार्क्स दे दो जिसमें they have gotten the maximum CGPA to boost their CGPA, because as you said कि final year के number they are usually better than the previous semesters, so they are like कि हमारे जो 20 तक semester में जो best CGPA है, we want that for our final year. They don't even want the average thing. So it's like कि yeah, they are being greedy. I will say I am a DU student and I will tell you कि मुझे एग्जाम देना है because मुझे अटका नहीं रहना. I have to move forward. I have to take admission elsewhere, and because of few of you who are like so adamant कि मुझे एग्जाम नहीं देना, ना तुम्हारी यूनिवर्सिटी सुन रहा है ना तुम यूनिवर्सिटी की सुन रहे हो, तुम ऐसे ही पता नहीं क्या चल रहा है, एंड वो उसकी टाइम वजह से वेस्ट है. वो बेसिकली बेसिकली चाहते हैं कि लॉकडाउन में अभी हम फ्री हैं, वेले हैं, घूम तो हर कोई रही है इंडिया में, तो वो अभी मजे कर रहे हैं. लॉकडाउन एक हाँ, बहाना मिल गया. तो मैं बेसिकली इसमें ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स वो आर डिफेंडिंग कि हमें पेपर नहीं देना. सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ डज नॉट, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डज नॉट केयर अबाउट एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट. राइट. For them they're regulating a system. For them their system is at the most priority. So for those students, for जिनके लिए कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट था, वहां पे वो लोग अपनी लाइफ को एक्चुअली ग्रो करने आए थे. आप अपने इंडिविजुअलिटी ग्रीडीनेस के चक्कर में कलेक्टिव कॉज का नुकसान कर रहे हो. एग्जैक्टली. कॉज कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि कॉलेज मार्क्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दे हैव टू गो जॉइन देयर फादर्स बिजनेस और समथिंग लाइक दैट. बट फॉर दोस पीपल हु आर डिसाइडिंग टू गो मास्टर, तो हम लोग सब लोग क्लैरिटी जानते हैं कि डीयू में 3 साल की डिग्री के बाद दैट देयर इज नॉट much opportunities in the market. Unless and until you are a graduate from very to be specific, reputed college. Yeah. SRCC or LSR or Hansraj Hindu, all of those, except those colleges. Yes, if you are from any other college, you will have to add a value to your resume, and for that you require your mark sheet, you require a very good result. And I'll tell you my case, because examinations are not happening, because I don't have my grade and mark sheet. I cannot apply for, I wanted to apply for IIMC, and this year they are not taking admission test. They are taking on the basis of mark sheets and on the basis of results and degree, but I don't have that. So it's basically साफ दिख रहा है कि मेरा एक साल बेकार जाएगा if you don't allow us to appear for the examination, and that is really really sad. Yes, so and इसमें एक बहुत लोग ये पॉइंट बोल के आ रहे हैं कि यार हम लोगों ने पूरी जिंदगी पेपर दिया, अब हमको पेपर देने का ना देने का मौका मिल रहा है, तो व्हाई आर नॉट पीपल अंडरस्टैंडिंग दैट. सी, कॉलेज है, कॉलेज में वैसे भी मैंने भी मस्ती करी है, सो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी अपने कॉलेज लाइफ में खूब मस्ती करी होगी. गिव इट, ऐसा नहीं है कि डीयू इज गोइंग टू स्ट्रेच दैट एग्जाम्स फॉर सो लॉन्ग. अगर आप, मैं मानता हूं डीयू इज एट सो मेनी मिस्टेक्स. डीयू ने, हमने देखा कि डीयू ने मॉक एग्जाम्स के साथ क्या किया. जब उन्होंने मॉक एग्जाम्स लेने की कोशिश करी तो उनकी साइट क्रैश हो गई है. बट गिवन दैट टेक, दे आर ट्राइंग टू हेल्प. जब मैं शालिका से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, तो शालिका गेव मी वेरी गुड पॉइंट्स कि डीयू इज एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प. बट लाइक ओके, बिफोर गोइंग टू कि डीयू एक्चुअली में क्या हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हमने अभी तक स्टूडेंट्स को बोला कि भाई स्टूडेंट्स से प्ली करा कि प्लीज ऑनलाइन एग्जाम देने को सपोर्ट करिए, करेक्ट. अब हम लोग डीयू पे जाने से पहले लाइक बाकी दो लोग, ऋषभ, let's start with this. Rishabh, you are a final year student in IP University. What is your opinion on the drama going on कि बच्चों को पेपर नहीं देना, या फिर डीयू के जो डीयू का फर्स्ट चल रहा है? हाँ, वही लॉजिक वही बोल रहे थे कि अगर फर्स्ट 3 इयर्स को तुम पास करो एवरेज मार्क में, तो हम क्या इंसान नहीं है, हमें क्या कोविड फ्री है. तो उनके लॉजिक से मेरे को सिर्फ एक ही चीज पता चलता है कि हम जो फर्स्ट 3 इयर्स को नहीं एग्जाम देना था, उसके पीछे का लॉजिक ये था कि पॉपुलेशन कम करे, ताकि
जो उन बच्चों जो फाइनल बच्चे हैं, जैसे मान लो 4 साल के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए पूरी एप यूनिवर्सिटी में, करीब 1 लाख 1.5 लाख बच्चे हैं, तो उसमें से पॉपुलेशन कैसे कम करेंगे, क्योंकि सबको एग्जाम देना तो फिजिबल नहीं है, उसकी तरह कॉन्टेमिनेट हो हम्म जाएगा। उन्होंने किसको हटाना प्रेफर है, जो फर्स्ट ईयर के हैं, बिकॉज उनके बचे हुए 3 साल में उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जो सेकंड ईयर है उनके पास कम से कम 2 साल बचेगा, और थर्ड ईयर उनका भी फोर्थ ईयर बचा है, लेकिन फोर्थ ईयर वालों के पास तो कोई मौका नहीं है ना भाई। तो मैं तो ये आखिरी एग्जाम है तुम्हारा, सच में लिटरली ये आखिरी एग्जाम है तुम्हारा ये, तो फिर इसको दे के खत्म क्यों नहीं करना। तो शायद यही लॉजिक था। प्लस डिग्री देने से पहले किसी मिनिस्ट्री का मैंने पढ़ा था कि आपको डिग्री लेने से पहले आपको एग्जाम देना काफी जरूरी है, ताकि आपको जो Right. लेजिट जो आपके लेजिट मार्क्स होंगे वो आपके एड ऑन होंगे इंस्टेड ऑफ एवरेज। क्योंकि आप जब रिज्यूमे दोगे, आप ऑफिस में आओगे, तो आप कैसे समझाओगे उसे कि आपके फोर्थ फाइनल ईयर के मार्क्स किस हिसाब से लगे हैं एवरेज में, ड्यू टू वॉट एवर रीजन। उसके हिसाब उससे अच्छा तो ये है ना कि जो आपके लेजिट आए हैं मार्क्स उस पर बैठा लो। प्लस अगर मुश्किल होते सब्जेक्ट तो फिर भी शायद मैं फाइट करता कि हाँ भाई मुश्किल है थोड़ा, तो कुछ करते हैं, लेकिन जब आसान सब्जेक्ट है इसमें ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हो, तो आप एवरेज से क्यों आप सेटलमेंट कर रहे हो, खुद ही नीचे कर रहे हो अपने आप को। तो इट्स लाइक मुझे मुझे भी मतलब मुझे खुद लगता है यार, मैंने फाइनल ईयर एग्जाम दिए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट, मैं 1 साल बिफोर दिस पेंडेमिक आई ग्रेजुएटेड एंड आई वाज एबल टू गिव माय फाइनल एग्जाम्स। ट्रस्ट मी ऋषभ, मेरी थर्ड ईयर के बाद जो मार्क्स थे और जो फोर्थ ईयर के बाद जो मार्क्स आए उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस था। ऑब्वियसली। मुझे अपने फोर्थ ईयर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सब्जेक्ट्स वर रिलेटिवली इजी देन द लास्ट सेमेस्टर्स। सो फोर्थ सेम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, और कुछ कॉलेजेस में मैं आपको बता देता हूँ फॉर ऑल दोस व्यूअर्स, मैंने देखा है, मैं अब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि अगर इस तरह का कुछ ड्यू अगर प्रोसीजर करता है कि आप पेपर्स नहीं दे रहे हो, तो गिवन जब आपका एक ट्रांसक्रिप्ट रेडी होगा डिग्री का, तो उस डिग्री में आपके फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स नहीं इंक्लूड होंगे, Right. उसमें आपके फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स नहीं होंगे। तो जब आप 2 ईयर 3 ईयर इन द फ्यूचर मास्टर्स के लिए जाओगे और आप उनको बोलोगे कि आपके पास रिक्वायर्ड क्रेडिट्स नहीं है, तो आप उस समय ये जाके नहीं उनको एक्सप्लेन कर सकते कि यार हम तो पेंडेमिक में थे, हमारा पेपर देने का यही मन नहीं यही था। रीजन मैं भी ये बोलने वाला था कि बहुत सारे बच्चे जो भी बोल रहे हैं ना कि एग्जाम नहीं देना, वो इसलिए कह रहे हैं कि यार कोविड का रीजन है, अपने आप ज्यादा नंबर दे देंगे टीचर्स, पर कंपनी थोड़े ना जॉब दे देगी कोविड को बोल के। एग्जैक्टली आप वो मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे आर योर फॉर योर पर्सनल पॉजिटिव, लाइक कि आपको फायदा करेंगे वो। they are not a rubbish protocol over a dignified system ki bhai they are just trying to bully over something। I get DU bully students, हम मानते हैं, मैंने अब खुद DU का प्रोसेस बहुत खराब है, DU सपोर्ट करने में बहुत मुश्किल करता है, बट गोइंग वर्षालिका, you were telling me some points about कि DU is actually doing some things। So हम लोग मतलब खाली नेगेटिव नहीं बताएंगे, तो पॉजिटिव, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन लाइक व्हाट ऑल DU हैज एक्चुअली डन टू सपोर्ट इन दिस, गिवन इट हैज कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स। What has DU done abhi tak is ki it is saying कि all those students, they also understand that a lot of students who live in a very remote area, they don't have access to internet, a lot of them, and a lot of them are suffering from mental trauma because some of their relatives are, have got COVID-19. So for all those students, it has made a policy कि if you're not able to give online examination or open book examination, you can appear for examination after this open book is done, like in September or October, whenever, and that will also be, there will be fresh guidelines for that. It's not clear right now कि how they are going to conduct that examination, but इतना तो बोल दिया ना कि ठीक है, if you are not able to give examination अभी because of any reason, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पहली बात तो कि तुम इस चीज से खुश हो जाओ कि DU इतना कंसिडर भी कर रहा है, and second of all कि when you can appear, if you are fighting for all those students जो appear नहीं कर सकते examination के लिए, तो उनके लिए we have policy, this is done and dusted. Second thing, DU has, have for mock test also, उसने 4 दिन का mock test था, and 6 sessions में होना था mock test, like timings were given कि this to this, so that all the students don't rush to at one particular time and site crash हो जाए,
it was just to see the feasibility of conducting online examination कि एक साथ अगर सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, if it is conducted in a proper well planned manner, तो क्या site crash होती है. But what happened? There were a lot of voice notes and messages being circulated on the group कि हम एक particular time slot लेते हैं. This is the time slot when all of you have to go online, all of you have to appear for the mock test इस time slot में, and तुम सब बस scribble करके कुछ भी paper पे you just upload it, and this was done कि site जानबूझ के crash हो जाए. ठीक है. So when DU is trying to conduct examination and इतनी सारी changes कर रही है, then why are we not supporting it, and why are we doing this? I completely agree. मैंने बच्चों से तो आप पंगा ले नहीं सकते हो भाई. ये तो सिखा दिया उन्होंने. लेकिन ये फिर भी ये कितनी गलत बात है जब कुछ वो नहीं ऋषभ, मैं तेरे को जैसे बताता हूँ. भाई DU को ऑफलाइन एग्जाम्स लेने में इतनी दिक्कत होती थी. DU को आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ फंक्शनिंग, मेरे कॉलेज में कई बार होता था कि एग्जाम्स में किसी बच्चे की रोल नंबर गलत दे दिया, एडमिट कार्ड पे नाम गलत है, तो वो लोग ऑफलाइन वाला काम ही बहुत एरर्स के साथ करते थे. तो गिवन कि 2-3 महीने के ड्यूरेशन में दे आर ट्राइंग टू मूव द होल सिस्टम फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन. That is a big task in itself. I know that is a negative. They are not so well established कि वो लोग ऑनलाइन अपना पूरा सिस्टम मूव कर सके. But we can't change that. That is the reality. Reality is कि आपको अपना फाइनल ईयर के एग्जाम देने हैं, and how DU is trying to actually consider something. मैंने बहुत जितने भी लोग ये बोलेंगे कि DU ने ये करा, DU ने वो करा, मैंने सबके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे हैं. मैंने सबके देखा है कि किसी के DU में किसी के जो भी एंट्रीज आ रही, किसी में किसी का नाम गलत है. मेरी खुद की दोस्त है जिसका DU हर बार एडमिट कार्ड में नाम गलत डालता है. आई गेट इट, बट एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक स्टडीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, स्टडीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर DU. DU से अगर किसी 10 बच्चों का इसकी वजह से अगर फ्यूचर खराब होता है, DU doesn't give a fuck. Right. And when we are talking about a students की गलती, here I would like to mention एक legit point why people are scared to give online examination. That is because DU की authority is really bad. ठीक है. They are not responsive at all. If God forbid something goes wrong with the site, like legit crash हो गया site, कुछ problem है, they have provided the helpline number. But I will tell you a real incident what happened. One of my classmates mock test के दिन, Sunday को mock test था सुबह 8 बजे. So he went on the site, he was paper दे रहा था mock का, and then he wanted some help. I don't know what kind of help he wanted, but he called a helpline number, just my number mentioned था. That person picks up the call. He says, उसने उसको बताया कि सर मेरा मॉक टेस्ट है ये वो. He was just speaking and that person on the call, the authority person, he says कि आज दिन कौन सा है. He says सर संडे है. तो कहता है कि एंड क्या टाइम क्या हो रहा है, कितने बज रहे हैं अभी. तो he says सर 8 बज रहे हैं. एंड उसने इतना गंदी तरीके से उसको उस पर चिल्लाया है कि तुम्हें पता नहीं कि वीकेंड को काम नहीं करते ये वो, कि हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता. That was really rude, really bad way of talking to a student. And when that person went on Twitter writing this, quoting all of that, that person actually started threatening him कि मैं तुम्हें मतलब this was really wrong of you and ये वो करके. So that person had to take down the tweet also. So this is the kind of treatment that students are getting. तो मैं बेसिकली इससे एक स्मॉल कंक्लूजन ये डालना चाहता हूँ कि इफ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, फाइट फॉर द थिंग्स दैट एक्चुअली नीड अ चेंज. यू डोंट नीड टू फाइट फॉर कैंसलिंग योर एग्जाम पेपर्स. मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, बी अ कलेक्टिव, फाइट टू चेंज द सिस्टम. फाइट कि आप अपने एग्जामिनेशंस को कितना फ्लुएंटली बना कर सकते हो. डोंट फाइट कि हमें एग्जाम्स नहीं देने हैं, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं रहा. अगर आप ये कर सकते थे, तो अगर वो कंसिडर करते आपके ओपिनियन, तो भी एक बात ठीक थी. जब उन्होंने कह दिया कि एग्जाम होने ही वाले हैं, तब लड़ने का क्या फायदा. अब तुमसे फालतू में अब जैसे शालिका ने बताया, तो आप इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट्स के लिए फाइट करिए. आप DU को बोलिए कि आपके साइड से एडमिनिस्ट्रेशन नुकसान है, हम पेपर देने के लिए रेडी हैं, बट यू मेक दैट सिस्टम दैट फ्लुएंट कि वी कैन गिव पेपर्स
as Right. as easy as possible. Exactly. हाँ, उस 6 सेशन को लेके उसको 10 सेशन में बढ़ाओ। उस मतलब जो भी 200 बच्चे एक साथ देंगे उसको सिर्फ 100 बच्चे लाओ, ताकि साइट क्रैश ना हो। एक स्पेसिफिक रोल नंबर वाइज लाओ या फिर कोर्स वाइज लाओ, जैसा भी करने का एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे आप कंटेंट दो, अपने आइडियाज डीयू को बताओ कि आपको क्या चाहते हो, जिसकी वजह से इजीली आप एग्जाम कंडक्ट कर सको, सिवाय इसके कि भाई क्रैश ऐड करते हैं जल्दी से, सब लोग आओ एक साथ इसको खत्म करो भाई, नहीं देना। तो ये सब ना करके आप एक कंस्ट्रक्टिव वे की तरफ सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट क्या नहीं हो सकता? क्या हम इतने इंडिया की पूरी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना डम तो नहीं हो सकते आप लोग। तो हाँ सेंसिबल होइए, थोड़ा कोशिश करिए, आपकी तरफ से भी एक सिस्टम सेंसिबल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो इतना करप्ट है, जो इतना करप्ट भी क्या ही बोलूं उसको, मतलब जिस हिसाब से उसने बात की उसे मैं करप्ट ही बोलूंगा, रूड है। जो भी हायर ऑथोरिटी में है वो हमेशा हायर ऑथोरिटी में रहेगा, हम लोग स्टूडेंट रहेंगे हमेशा के हमेशा, तो उनके साथ में कोऑपरेट करने में हमारा फायदा है, उनसे लड़के तो हमारा नुकसान ही होगा। मैंने ये सीखा है Right. अपने कॉलेज एक्सपीरियंस में, है कि नहीं? तो लाइक बिफोर एंडिंग दिस सेगमेंट में एक पॉइंट है जो हम लोगों ने रिसर्च करते हुए देखा कि एक है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली में हॉस्टल्स में रहते थे, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक दे मूव्ड बैक टू देयर पेरेंट्स किसी और स्टेट में। तो बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट हैव बुक्स टू स्टडी, दे डू नॉट हैव, उनके हो सकता है घर पे प्रॉपर नेट ना हो। Right. तो मैं इस पे मतलब काफी एक पूरा एक डिस्कशन कर सकता हूँ, बट वी विल नॉट ट्राई टू स्ट्रेच इट ओवर हियर। वी आर थिंकिंग ऑफ अ पॉसिबल सोल्यूशन दैट वी कैन डिस्कस विद यू गाइस कि हम लोग इस स्टडी मटेरियल्स के प्रोसेस को कैसे इजी कर सकते हैं। तो आवर नेक्स्ट एपिसोड इज आल्सो गोइंग टू बी ऑन एजुकेशन। वी विल ट्राई टू ब्रिंग अप अ सॉल्यूशन फॉर यू एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्कशन कि ये स्टडी मटेरियल्स का जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। विद इन अ वाइल अगर आपके पास कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपके पास स्टडी मटेरियल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन है, कोई अच्छा सॉल्यूशन है, तो प्लीज हमें बताइए, दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बट कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, नॉट जस्ट डीयू, हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करंटली एजुकेशन से बहुत फस क्रिएट कर रही हैं, और इंटरनेट स्पेशली इंस्टाग्राम और इंटरनेट पे बहुत ज्यादा है। तो श्रेयस, लेट्स स्टार्ट विद यू, लाइक व्हाट या तो मेरा बेसिकली ये, जैसे कि अभी बात डीयू की हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो एजुकेशन का क्राइसिस अभी इंडिया में चल रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के, वो प्राइवेट कॉलेजेस भी कर रहे हैं वही चीज, सेम एग्जैक्ट चीज। पहले अब कॉलेजेस ने क्या किया, यूजीसी के अंडर आके सबको पास कर दिया, जो भी उनके एवरेज मार्क्स थे उसमें बहुत बच्चे सफर कर रहे हैं। बहुत लोग जिन लोगों ने इंटरनल ये सोच के दिए थे कि एक्सटर्नल से हम ठीक कर लेंगे अपना रिजल्ट, हम उनका रिजल्ट ट्रैश हो गया है। लाइक 0 पॉइंट समथिंग CGPAs आ रही हैं लोग की, बहुत ही बुरी हालत कर दिया है। और फिर उनको तब बोला गया कि हम तुम्हें सप्लीमेंट्री विल गिव यू चांस फॉर इम्प्रूवमेंट, हम आप तुम प्रॉपर टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का सबका। और अब जब सप्लीमेंट्री पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर लेने की बारी आई तो दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज फॉर ईच पेपर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। That is so wrong. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब पहला तो ये, तो पहले उन्होंने फिर सबको पास कर दिया, पास करने के बाद नेक्स्ट सेम की बारी आई, और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए सब प्राइवेट कॉलेजेस ने सब बच्चों से फुल फीस मांगी और बोला कि ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें हम आपको कोई और एक्स्ट्रा सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, और आपसे पूरी फीस भी ले रहे हैं। सो कॉलेज का लाइक श्रेयस, मैंने इसमें देख रहा था कि ये एक इशू बाहर भी हो रहा है कि पेरेंट्स आर सूइंग द कॉलेजेस कि भाई अब आप सारी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर नॉट यूजिंग योर क्लासेस, तो आप लोग स्टूडेंट्स की फीस क्यों नहीं कम कर रहे? मैंने उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी, और उसका कॉलेजेस इसका आंसर देने की ये कोशिश कर रहे थे कि हम अपने टीचर्स को फीस तो वही देंगे कि कोविड के टाइम पे हम टीचर्स की फीस कम नहीं कर सकते, तो हमको फीस तो उतनी देनी पड़ेगी, तो उतनी फीस देने के लिए वी नीड दैट मच ऑफ, हमें उतना ही आपसे वो चाहिए फीस, सॉरी उतनी सैलरी देने की। बट दैट इज नॉट लूपहोल दिखाया नहीं नॉट ट्रू कि बिल में सिर्फ वो एकेडमिक नहीं होता, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेस लगते हैं उनका क्या, वही, बट पूरे पैसे क्यों लेते हैं? बट दैट्स द थिंग, प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट उनको इतना नहीं कंट्रोल कर सकती, तो फोर्सफुली वो स्टूडेंट से ले रहे हैं फीस। और फिर चलो अगर वो टीचर्स को फुल सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, अगर वो टीचर्स को फुल सैलरी दे रहे होते, दैट अ पर्सन कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि चल मेरी वजह से कोई और दोनों तरफ से पैसे खा रहे हैं।
ये हाँ मतलब जितना मैं सुनता हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे धंधा बनते आ रहा है, डे बाय डे प्रूविंग देम राइट कि हर एक चीजें सही होती जा वही रही है एंड कि ओके तुम दोनों तरफ से पैसे खा रहे वही, और इसका अब that I will तुम agree on I will agree on या that कि now education is just a business. हो। I know many people will criticize me कि why do you think so, but I have so like हमने अभी जितना डिस्कस करा है, जिस तरीके से एजुकेशन इंडिया में जाते जा रहा है, इंडिया में एजुकेशन स्पेशली इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एक बिजनेस प्रोटोकॉल बन गया है। बिल्कुल। जैसे श्रेयस मुझे बता रहा था कि जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, टीचर्स को फुल सैलरी भी नहीं मिल रही है, टीचर्स के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है कि टीचर्स को पर आवर पेमेंट मिल वही रहा है। मैं उस पॉइंट पे आने अगर वाला आप था कि जैसे कि अनुदित तू भी हाँ अभी तू जॉब करता है, तो तेरे को भी जब तेरी पूरी सैलरी मिलती है, इंसेंटिव मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, तभी तेरे को काम करने का भी मन करेगा कि इफ आई एम एग्जैक्टली वर्किंग आई एम आल्सो गेटिंग पेड फॉर इट। सो अब टीचर्स को क्योंकि सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, तो टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हैं। ध्यान नहीं देता। उनका खुद का फोकस नहीं जा रहा है, खुद को उनको भी मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। वही तो मोटिवेशन ही लाइक नहीं श्रेयस मुझे बता रहा था कि इसकी क्लास में एक टीचर सो गई थी पढ़ाते पढ़ाते। है। मतलब वैसे वो असली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी सो जाते हैं, वो अलग बात है। कोई बात नहीं, बट आपने हाँ सी देख रखा अब होगा। इसी में एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट स्टोरी ऑन इट। किसी के यहाँ पे हाँ, पूरा कंटेनमेंट जोन आ गया, तो बहुत वैसे भी फीमेल टीचर्स को बहुत सारा घर का काम भी खुद करना पड़ता है अपना, तो उनको कॉलेज के एग्जैक्टली साथ साथ वो भी करना पड़ रहा है। बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो जिनको बिल्कुल लैपटॉप इस्तेमाल या कुछ आता ही नहीं है ऑनलाइन उनको क्लासेस लेना, तो वो बच्चे उन्हें ऑनलाइन क्लास में सिखा रहे हैं कि मैम ये करने से ऐसे होगा, आप ऐसे अटेंडेंस डाउनलोड कर लो, आप ऐसे हमें ये वो, वो तो और उसमें क्रोम से इग्नाइटो मोड खुलवा देते हैं उनसे, ये कर रहे हैं बच्चा। मतलब इन शॉर्ट बच्चे हरामी तो हैं, ये तो बात हमेशा से ट्रू हो रहेगी। रही है। लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट भी गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इन सब भी जो फीस दे रहे हैं उनको प्रॉपर मोटिवेशन ना टीचर को दे रहे हैं ना ही स्टूडेंट को दे रहे हैं। दोनों तरफ से गाइडलाइंस आ ही नहीं रही है। उनके पास अगर पैसा आ रहा है तो वो आए जा रहा है, वरना वो सीधे स्टूडेंट को बाहर निकाल दे रहे हैं और टीचर को भी बाहर निकाल दे रहे हैं। तो अभी तो है कोर्ट और कचहरी का बहुत लंबा दौर चलने वाला है। जैसे पेरेंट्स ने सू किया है, आई होप वैसे और भी केसेस में कॉलेजेस ने सामने नहीं, एक और what आएंगे। you know ऋषभ हाँ, what I feel कि स्टूडेंट्स इन जनरल अगर एक कलेक्टिव में कुछ काम करें, दे आर वेरी पावरफुल। व्हाट आई फील कि इसमें एक सबसे इजी सॉल्यूशन है कि जैसे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टुवर्ड्स की टीचर्स की तरफ रिस्पेक्ट का। हम लोग अभी एक नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि टीचर, अभी बीच में हमने इंस्टाग्राम पे देखा था कि कैसे बच्चे टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस में गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना इन जनरल। तो व्हाट आई वुड से कि व्यूअर्स के लिए स्पेशली कि अगर आपके कोई टीचर्स हैं और यू रिस्पेक्ट, जो आपने, मैंने इतने लोगों को इंस्टाग्राम पे देखा कि टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर को, तो जो लोग वो पोस्ट डाल रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि टॉक टू योर टीचर्स, आस्क कि आपको आपकी सैलरीज पूरी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। बी फ्रैंक विद देम कि मैम हम लोग अपना पूरा पैसा दे रहे हैं कॉलेजेस को, एटलीस्ट कि आप लोगों को पूरा पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्रिएट अ कलेक्टिव ग्रुप, फाइट फॉर दीज थिंग्स, हाँ, लेट बॉयकॉट देम। मिलके बॉयकॉट करो ना फिर अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, जब पैसे हम दे रहे हो, अगेंस्ट द पैसे वहां तक एडमिनिस्ट्रेशन। पहुंच नहीं रहा, तो भाई तो करप्शन चल रहा है बीच में। ये क्या है? जीटी रोड बना रहे हैं, लालू सरकार की थोड़ी अरे ना ये है। मैं ऋषभ मैं तेरे को वही बताता भाई। हूँ, मेरा एक दोस्त है, हाँ, उसके पास लैपटॉप नहीं था, ही couldn't afford लैपटॉप, तो उसने उसमें पैसे जो बचे हुए थे उसकी फैमिली के पास, उसको जबरदस्ती अपने कॉलेज को फीस ऐसे देना पड़ा। और फिर बच्चा जब अपने फोन से ऑनलाइन क्लास में आया, तो टीचर उस पे चिल्ला रही है कि तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं है, बाय अ लैपटॉप, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। ओ भाई। सो मतलब एक तो बेसिकली ये इशू हम लोगों ने जब रिसर्च करा तो हमें पता लगा कि टीचर्स को भी कहीं ना कहीं सैलरीज प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट 100% वाइट कि भाई हाँ हर टीचर को सैलरी नहीं मिल रही है। देयर आर सम कॉलेजेस हु आर गिविंग प्रॉपर फीस टू देयर क्या कहते हैं स्टाफ, बट try to fight for these points because at the end of the day they are our teachers, they are going to teach us for what we are going to become in the future. तो समवेयर और अनदर दे प्ले अ मेजर रोल। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत टीचर्स हैं जो मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी अगर मैं उनसे मिलूंगा यू नो आई विल और टॉक टू देम वेरी और करना प्रॉपरली। ही चाहिए। मतलब ना रिस्पेक्ट करने वाली बात क्या है? पुराने टाइम में लोग गुरु बोलते थे यार उनको, हमने उनसे सीखा है। हाँ हम लोग पैदा हुए थे, वी वर ब्लैंक सीडी, ब्लैंक पेन ड्राइव थे। उन्होंने हमारे अंदर डेटा घुसाया है,
जिस हिसाब से हम जॉब कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है अभी कंटेंट, हम जो बात कर रहे हैं ना, हमारे लिंग्विस्टिक भी हमारे टीचर्स ने बताया होगा, कोई ना कोई मैम होंगी हमें जिसने हमें इंग्लिश पढ़ाया है, जिसने हमें हिंदी पढ़ाया है, तो वी हैव टू यस रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट वी आर। तो बात है ही नहीं, तो जस्ट फंडामेंटल थॉट है। इसके अलावा जो टीचर्स भी, जो लैपटॉप के बारे में जो इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वी हैव टू बी सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक, सॉरी सिंपैथेटिक नहीं, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसा इतना मुश्किल टाइम है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसके पास अगर लैपटॉप कौन नहीं चाहता, अगर जो Correct. अफोर्ड नहीं कर पा उसके पास कोई रीजन ही होगा, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए कि जो फोन से पढ़ना चाहता है, आप उसके मीडियम को क्यों देख रहे हो? किसी के पास किताब नहीं है तो उसको डांटो मत कि उसके पास किताब नहीं है, उसको कहीं से ला के दो, उसको पीडीएफ अपलोड करके दो। मतलब वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। कहाँ रह रहे हैं हम? व्हाट सोसाइटी हैज नहीं बिकम। मैं तेरे को समझ बताता हूँ। जैसे मेरी मॉम है तो वो हाँ ऑनलाइन क्लासेस लेती है लिटरेचर की, ठीक है। सो बिफोर दिस पेंडेमिक वो यूजली ऑफलाइन क्लासेस लेती थी, घर पे बच्चे आते थे और वो पढ़ाते थे, ठीक है। ऑफलाइन अब जैसे ही पेंडेमिक आया उन्होंने ऑनलाइन क्लास कर, पहले माय मॉम सैट विद अस एंड शी लर्न कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं। Mhm. आई कुड सी कि वो अपने घर के काम से, घर में कितना काम होता है, खाना बनाना, ऊपर से सफाई तुम दोनों करवाना, जैसे सब कुछ करना। जैसे भूखे नंगों को खाना खिलाना, उसके अलावा बेचारे बच्चों को पढ़ाना, तो मैं समझ सकता हूँ कितनी हाँ मेहनत होगी। तो मैं आपको मैं बताता हूँ कि वो जब क्लासेस लेने के लिए बैठती है ना, उन्होंने बुक्स, बाय लक उनके पास बुक्स थी, तो जो बच्चे हैं उन लोगों के पास बुक्स नहीं थी। माय मॉम बिफोर गोइंग इनटू द क्लासेस सिट्स 1 hour, शी क्लिक्स फोटोज, वो हर बुक के एक पेज की फोटो खींचती है, उनको पीडीएफ बनाती है और फिर बच्चों को देती है। सो इट्स नॉट कि टीचर्स आर नॉट वर्किंग देयर एसेस ऑफ। टीचर्स एक्चुअल में, जो आप एक टीचर को रिस्पेक्ट देने का करते हो, टीचर स्टूडेंट्स को भी वो रिस्पेक्ट देते हैं। मैं ऋषभ से उस दिन ही कह रहा था कि देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ऐसा Right. नहीं है कि सारे टीचर्स गलत हैं और ऐसा ही नहीं है कि सारे बच्चे सही हैं। सही है। तो इस फिर पे एक बार कमिंग, सब हाँ लोग एक बार कमिंग, इस पे कम, आंटी के नाम पे एक बार अप्लॉज करो कि वो इतनी मेहनत कर रही है, तो बिल्कुल सही है। और यस यार, नॉट, बाकी टीचर इनसे थोड़ा सीखे, और बाकी स्टूडेंट भी सीखे जो उनसे सीखना चाहते हैं। मतलब आप अपने घर पे बैठ के एसी ऑन करके सामने जो बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, उसको गाली देने से क्या मतलब है यार? कैसे तुम लोग बिहेव कर रहे हो? और टीचर को भी, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे तो ढल जाएगा दिन। 2-3 महीने की बात है, वैक्सीन आने ही वाला है, मैंने सुना है कि रशिया में डेवलप हो चुका है, तो एक बार सब ठीक हो जाएगा, फिर आमने सामने करना। आमने सामने बहुत फटती है जब टीचर सामने होता है तब नहीं निकलता, इनकी आवाज अभी निकलेगी ऑनलाइन में। हाँ तो तो चलो इस ठीक पे है। इस पे कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो हाँ हमारा इस एपिसोड का है, कि हमने अभी कुछ वीक्स पहले देखा था कि एवरीवन इज शेयरिंग द पोस्ट ऑफ अ पर्सन, जिसमें वो दिखाया था कि पीपल वर अब्यूजिंग दैट टीचर, है ना। तो उसमें सब बच्चे बोल रहे हैं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। माय इंस्टाग्राम फीड वाज विद द सेम पोस्ट, हर कोई सेम पोस्ट शेयर करे जा रहा है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी, ये करते हैं। Right. ट्रस्ट मी, आई नो सच पीपल जो खुद क्लास में टीचर के पीछे इसको गाली, हम्म, आज वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं कि हमको टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम्म, ये कि तो है। पुराने टाइम में तो, कि पहले टाइम में तो स्टूडेंट ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। हाँ भाई तो हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? एंड बिल्कुल। आई एम लाइक कि ब्रो, यू डोंट रिस्पेक्ट द टीचर्स, हाँ यू जस्ट रिस्पेक्ट द आइडिया ट्रेंड। ऑफ रिस्पेक्टिंग टीचर्स की वो नहीं, कूल है। आइडिया भी नहीं है, इट्स जस्ट यू आर रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड। ये ट्रेंड चल रहा है इसलिए तुम ये हाँ, कर ये रहे हो, बात सही कही। इसके अलावा हाँ, रिस्पेक्टिंग द हाँ तुम्हें ट्रेंड। फर्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज से। हाँ अब अ, इसमें आई टोटली सपोर्ट। हम लोग अभी तक ये बोल रहे हैं कि टीचर्स को सपोर्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट मैं ये खाली ऐसा नहीं है कि मैं खाली बच्चों की खिंचाई करने के लिए हमने एपिसोड बनाया है। मैं बच्चों के एंड से अगर एक टॉपिक एक मतलब पॉइंट रखना चाहूँ तो ये है कि हम जानते हैं ऑफलाइन क्लासेस में कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो डोंट डिजर्व द रिस्पेक्ट दैट वी थिंक, कि भाई वो लोग होते हैं कि वो आपको बुली करते वो हैं, इंसान ही बुरे आपको होते हैं, बहुत, उनका टीचर होने से मतलब हाँ, नहीं है, पर्सनैलिटी ऐसी है उनकी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी। मैंने हमको पता है कि भाई आप 2 मिनट लेट आए हो तो आपको पूरी क्लास के सामने चिल्लाएंगे। बेइज्जती करेंगे, तो वो ठीक है। हम सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि कई बार कुछ टीचर्स होते हैं जिनको हम हेट करते हैं कि यार ये टीचर Right. तो पसंद ही नहीं है, और हमारा होता है कि हम इसकी क्लास में जाएंगे तो उसको पूरा परेशान करेंगे। बट हमारे को एक डर होता है कि अगर उसने हमको पकड़ लिया तो हमारे पे सीरियस एलिगेशन आएगा, ठीक है। विद ऑनलाइन क्लासेस
जो वो पकड़ने का प्रोसेस है वैसा वो तो बहुत वेग हो गया, वो हाँ, बहुत वेग हो गया है। तो बचने अगर के एक ज्यादा 100 चांसेस बच्चों, है यहाँ पे। हाँ, बचने के ज्यादा चांसेस है। आई एम टेलिंग यू ना ऋषभ, बच्चे इस मूवमेंट को इसलिए एक बहुत अभी एकदम से ऐसा कि ऐसा पहले तो हुआ नहीं ना कि बच्चे एक साथ मिलके बहुत टीचर्स को गाली दे रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता था कि वहां पे वो पकड़े जाएंगे। यहाँ पे जब 100 लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो कोई बच्चा अगर एकदम से गालियां बोलना शुरू करता है, तो जो टीचर जिसको एक हफ्ता लगा खाली जूम कॉल समझने में, वो कैसे समझेगा कि कौन उसको कहाँ गालियां से दे रहा मिलता है। है, वही तो। मैंने अपने भाई की ऑनलाइन क्लासेस में देखा है कि देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर जस्ट रिडिक्यूलिंग टीचर्स। हाँ, टीचर राइट। की आवाज, आई विल टेल यू रीसेंट एक्सपीरियंस। मैं अपने भाई के साथ बैठा हुआ था, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, टीचर की आवाज आ रही है ना, बट सारे बच्चों ने कलेक्टिवली मिलके बोला कि मैम नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, और मैम ये सोच के क्लास छोड़ के चली गई कि अच्छा आवाज नहीं आ रही, चलो नेटवर्क इश्यू होगा, बाद में क्लास करते हैं। कंटिन्यू करता है, सही। अब इसमें जो मैंने फर्स्ट में भी बोला था, इसमें उस बच्चे का नुकसान हो रहा है सच में जिसके पढ़ना माँ बाप ने चाहता है। बहुत जिसके माँ बाप ने उसको बहुत मेहनत से इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था, कि वो उसको इसको जो प्रिविलेज उसको पहले नहीं मिला था लाइफ में, ताकि वो इस कॉलेज से एक प्रिविलेज पा सके। उस बच्चे का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और आपके, मेरे और जो भी लोग सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके लिए कॉलेज एक ट्रेंड नहीं है, जिसके लिए कॉलेज एक फेज नहीं है, जिसके लिए कॉलेज एक ऐसी चीज है जिससे वो अपना फ्यूचर बनाने वाला है। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने देखा, हमने आपको एग्जांपल्स बताया, स्टूडेंट्स कलेक्टिवली बहुत पावरफुल है। अगर आप लोग चाहो तो एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हो। तो अगर फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जो सुन रहे हैं और हमारी बातों में आपको सेंस लगा हो, तो थिंक अबाउट इट कि आप, कि हमने जो बोला है वो आपको कैसा लगा है। हम ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करें, हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स या तो कॉलेज स्टूडेंट रह चुके हैं या अभी कॉलेज में हैं। हम भी आपके वो सेम इमोशंस फील करते हैं जो आप लोग टीचर्स के अक्रॉस, सिस्टम के अक्रॉस फील करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना फायदा देखना है। आपके लिए फाइनल एग्जाम इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आपको टीचर्स को रिस्पेक्ट करनी है, बट गिवन यू गेट दैट रिस्पेक्ट, बट डोंट रिडिक्यूल देम, हाँ, और एग्जाम दे आर ऑल्सो। और एग्जाम को टालने से नहीं, मतलब मेन फैक्टर वो नहीं है। जो जो भी होना है ना, अगर खत्म भी होना है तो इतनी बड़ी लड़ाई करो कि अभी तुरंत खत्म हो जाए, उसे टालते मत रहो। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास सच में लॉजिक है तो, ताकि अभी डिमोलिश हो जाए कि हाँ भाई चलो एवरेज मार्क्स ही लगने हैं, तो अभी लग के 10 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन वो दिख नहीं रहा मुझे, फिर इसको अगले 2 महीने तक ही पूरा साल ही बर्बाद है। इससे एग्जाम देके खत्म करो इसे। ये पॉइंट पूरा पर एंड ये वो है, ताकि यू एग्जाम मूव ऑन इन लाइफ। लेके वो हाँ भाई, एग्जाम जब एग्जाम लेके उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि एग्जाम लेकर आएंगे, तो तुम लोग भी एग्जाम दे दो, किसी तरह दे ही दो, अब तो उनको दिखा दो। अभी होगा तो ऑनलाइन होगा, you have your books there, you have open book, everything is there, but if it happens after a few months you will have to give it offline, and फिर तुम्हें पता ही है कितनी मेहनत लगेगी, so तब think तुम्हें पढ़ाई twice. करनी पड़ेगी। अभी Right. तुमको डीयू ओपन बुक एग्जामिनेशन का मौका दे रहा है, यूटिलाइज इट, फ्रूटिलाइज इट, जो भी भाई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, यूज इट फॉर अ एक बैक पॉजिटिव थिंग। एक बैक पेंचर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी चीटिंग कर सकते हो, थोड़ा सा लेजिट है, हाँ, कर लो यार थोड़ा सा। चीटिंग करके बच्चे नंबर ले और खत्म करो इस चीज को। इतना मैसअप क्यों ला रहे हो? हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ और आने दो, रहने दो इस ओह चीज को अब। हाँ। बहुत हो गया अब है इस चीज के लिए खातिर। इस खातिर एग्जाम देके इस केस को बोलते हैं। बहुत दुनिया में बहुत कुछ है हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ है, कुछ और इंस्टाग्राम में आए नया नया, तो हम देखना चाहते हैं उसे। तो so जस्ट फिनिश let's विद इट। so हाँ, तो लेट्स एंड दिस एपिसोड हेयर, बट लाइक एक एंड कंक्लूजन में, कि आप हमें अपने व्यूज बताइए कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस। अगर एक सबसे बड़ी मैं चीज चाहूंगा कि एनी पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस और उसको एक्चुअल में इस प्रोसेस में कुछ हेल्प चाहिए, तो प्लीज कमेंट अस, इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कीजिए, हमारे @podcast confuse पे। ट्राई टू टेल अस योर प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। हमारे ऐसा नहीं है कि हम बस हवा में बात कर रहे हैं, वी कैन एक्चुअली हेल्प यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हम लोग सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं, हमारे पास काफी कॉन्टैक्ट्स है दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू। सो कमेंट्स में आप प्लीज हमें बताइए कि आपके व्यूज क्या है। उसके अलावा प्लीज लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हम लोग हर हफ्ते आपके लिए एक नया एपिसोड, एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आते हैं डिस्कशन का, एंड नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब। श्रेयस, हम लोग इसको आजकल हम इसको स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे भी अपलोड कर रहे हैं। मोस्टली एवरी प्लेस जहाँ पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो वहां पर। हाँ, और बहुत सुन रहे हैं। एक बात है कि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं आउट ऑफ आवर पर्सनल लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम लोग वी आर गेनिंग समथिंग, हमें बस अच्छा लगता है कि वो कुछ लोग सुन के इससे फायदा ले, हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। तो आप इसे सुने, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बिकॉज यू नो कि एक अच्छा काम करते करते भी अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होंगे इस चीज से। तो Right. यू नो Exactly. यू गेट द गेस्ट ना कि हम We लोग will be आउट ऑफ frank. द, हाँ वी आर गेटिंग आउट ऑफ द लाइन। हम लोग नॉर्मली खा सकते थे, हम लोग नॉर्मली एंजॉय कर सकते थे अभी टीवी शो, लेकिन हम लोग गर्मी में बैठ के पंखा बंद करके हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ताकि पंखे की आवाज ना आए। अगर हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू Like सुनने के लिए। we will be frank with you. We are not gaining anything out of this, but the idea of helping at least one person gives a lot of joy in one's heart. To for this only we try to give। बहुत हम लोग फालतू की बातें भी कर सकते हैं बैठ के, बट वी ट्राई कि हम लोग आपको एक कुछ बहुत अच्छा डिस्कशन दे जो आपको हेल्प करे, एटलीस्ट आपको एक ओपिनियन आए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, सो विद दैट आई thank anyone for who is listening to this episode and hope you are staying safe and अपने फैमिली का आप ध्यान रख रहे हैं, and we will meet you in the next episode of Confused. बाय Goodbye, guys. इंडिया का हो गया। हम अगले हफ्ते अमेरिका के बारे में बात करेंगे, तो ज्यादा एक्साइटेड लगेगा तुम्हें शायद। तो ट्यून इन नेक्स्ट वीक फॉर आवर एपिसोड। थैंक यू गाइस, बाय। Bye guys. Bye. And on